Success Mantra. We shape future. So hello everyone, my name is Ravi Rathore. I welcome you all on Success Mantra Digital. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ज़बरदस्त सेशन। हम कर रहे हैं एक सीरीज़ विच इज़ कंसेप्ट टॉक, जहाँ पर हम डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू वोकैब, रिलेटेड टू ग्रामर और रिलेटेड टू रीडिंग वी आर डूइंग दिस। सो इस सीरीज़ में आज हम ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड टाइम एंड टेंस और टेंस, इससे करते हैं हम। ठीक है, चलिए वी शुड स्टार्ट नाउ। So this is something about myself. Moving ahead. So what is tense? What do you understand by this term tense? Like मैंने देखा है कि बच्चों को कि tense हमेशा ही it has been a specter for them. Specter means fear. हमेशा ही fear रहा है उनके लिए. They are not that much confident. They should be, they are not. So thing is that कि यहाँ पर परेशानी ये होती है कि whenever we are talking about grammar, just like these chapters, verb, tense, है ना, subject, verb, concord, होता क्या है, we learn through rule numbers and these rule numbers are theoretical, but we should know the language practically. So this is the only difference because हमें क्या होता है कि हमें थ्योरी में we remember those rule numbers or we need to remember those rule numbers, but when it comes to practicality we are far behind, है ना। तो it says the word tense comes from Latin language word tempus. Latin language का एक root word है tempus, जहाँ से this term has been derived. This word tempus means टाइम। ये जो वर्ड टेम्पस है इसका मतलब है टाइम। यू माइट हैव गॉट सम वर्ड्स लाइक टेम्पररी, कंटेम्पररी, दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी रिलेटेड टू टाइम, है ना। सो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर्स सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मूविंग अहेड, दिस वाज द डेफिनेशन ओनली। आगे बढ़ते हैं। नाउ if you want to learn tense in a deeper sense with confidence, like है ना, you want to strengthen this chapter, like if you want to read something, if you want to speak in front of someone, or if you want to write something, you need to have a good knowledge of this chapter tense. Tense आपका बहुत strong होना चाहिए if you want to even read and understand something. Okay, so tense is the spinal cord of whole grammar. And if you want to make it a strength, है ना, rather than being your weakness, so you should know function of tense in the whole grammar, how it works. Like you should also know identification of tense. Like I have observed during my offline classes, जब कभी 2, 4, 5 सेंटेंस लिखवाए जाते हैं तो students are very much confused while detecting that tense of that sentence. वो पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है ना, वो सेंटेंस का लिखा हुआ है। तो देयर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है वहाँ पर बच्चों को। तो हमें सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए और फिर हमें टेंस का करेक्शन भी आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर दीज चैप्टर्स, वॉइस एंड नरेशन, एंड द करेक्शन इज, इफ़ यू वांट, करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर दीज चैप्टर्स, टेंस एंड कंडीशनल्स। सो दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए, टेंस का ठीक तरीके से आइडेंटिफिकेशन एंड फिर उसके बाद तभी हम कर पाएंगे ठीक तरीके से करेक्शन। नाउ मूविंग अहेड, हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ इट सेज वी आर फ्री फॉर 70 years बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। वी आर फ्री फॉर 70 years but we are still economically backward. So it has been segregated in four different parts: part A, part B, part C, then part D. If you find that the sentence is correct, your reply should be no error, that is part D. तो एक बार जरा देखें यहाँ पर कि सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। हाँ, टेक योर टाइम। So it says we are free for 70 years but we are still economically backward.
जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हम ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग. हाउ इट्स रॉन्ग? वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. नाउ द कंसेप्ट इज, सबसे पहले हमें पता करना है यहाँ पर कितने क्लॉजेज हैं. क्लॉजेज, देयर आर 2 क्लॉजेज. We are free for 70 years. This is clause number 1. Then this is the conjunction but. But is here a conjunction. Then we are still economically backward. That is clause number 2. So हमारा क्या है, दोनों clauses में we are using same tense. दोनों ही clauses में same tense हम इस्तेमाल कर रहे हैं. That we are using present indefinite और simple present, है ना. यहाँ पर भी are verb है और यहाँ पर भी are verb है. लेकिन यहाँ पर हमें समझना है ग्रामर में, टेंस में, कि वेन एवर यू ऑल्सो गेट अ रेफरेंस ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जहां पर टाइम भी मेंशन कर रखा है, देन इन दैट कंडीशन वी कैन यूज ओनली 2 टेंसेज. ईदर इट शुड बी इन परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जब भी कभी आपको किसी सेंटेंस में टाइम का रेफरेंस भी मिल जाता है तो आपको सिर्फ दो ही टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर थिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और अदरवाइज परफेक्ट ओनली. तो ये बात सही है कि वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लेकिन हम हमेशा से हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम फ्री नहीं थे. हम लास्ट 70 और 75 ईयर्स से हैं. तो यहाँ पर टाइम का रेफरेंस है बच्चे. इस कंडीशन में जो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. हमें लिखना पड़ेगा वी हैव बीन free for 70 years. So this is the correction over here. I repeat that if you find the reference of time is also involved in that sentence. So we can use 2 tenses only, either perfect tense or perfect continuous. That is why we changed here from present indefinite to present perfect. Okay. Moving ahead to the next question. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों. So here comes the next question. Just go through once the question. What it says, the man had found that someone had picked his pocket. It should be, it is a type of mistake. The word is pocket. That someone has picked his pocket. Now, देखें जरा एक बार. The man had found that someone had picked his pocket. So is it a right sentence or a wrong sentence? If it's wrong, where is the mistake and what is the correction? Take your time. So sometimes I found the students are very much confused, like they are confused, like there are 2 clauses here. The man had found, this is the first clause, and someone had picked the pocket, this is the second clause. What is the tense of these sentences? Both of these clauses, what is the tense? Tense कौन सा लिखा हुआ है? So the tense is past perfect. Tense is past perfect. Has, have, had plus V3. It is always perfect tense. Has, have, present perfect, and when it comes to had plus V3, it is past perfect. So हमने दोनों ही clauses में past perfect का इस्तेमाल किया है. ध्यान रखना, हम दोनों clauses में past perfect का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से एक एक्शन पहले हुआ है और एक उसके बाद में हुआ है. Whenever you find these type of actions, when there are 2 actions, one action happened in the past and one action happened past of past, जो पहले हुआ past में, तो उस कंडीशन में जो एक्शन पहले होता है, that action which happened initially, we need to use past perfect there, and the action which happened after that, we need to use past indefinite. So it says कि the man had found that someone had picked his pocket, तो पहले उसकी जेब कटी होगी और बाद में उसे पता लगा होगा. सो थिंग इज दैट यहाँ पर गलत हो गया प्यारे बच्चों. इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि पहले ये वाला एक्शन हुआ है, तो ये वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट लिखा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी पास्ट परफेक्ट में लिखा, ये बाद में हुआ था, तो ये गलत हो गया. इसे यहाँ पर हटा दीजिए. द मैन फाउंड V2 लगा दीजिए. तो
ऐसे एक्शंस जहां पर दो एक्शंस हो रहे हैं और बोथ आर इन पास्ट, तो वहां पर जो एक्शन पास्ट में पहले हुआ है विच हैपेंड इनिशियली, वहां पर आप इस्तेमाल करिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो उसके बाद में हुआ है वी नीड टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. I suppose you people have noted this point, noted this concept. It is a very important concept. So we should move ahead to the next question, question number 3. So here comes the question number 3. Please go through once. Now it's a lengthy sentence. It says, these are the ideas and ideals that have shaped our economic thought sometime in past. These are the ideas and ideals that have shaped our economic thought sometime in past. So you need to consider that, is it a correct sentence, or if there is any error, where is the error? Part A, part B, part C, and what need to be corrected, and what should be the correction. Go through once. Give your time. Now, how many clauses are there? How many clauses are there? The first clause is there that these are the ideas and ideals. This is the conjunction. If we want to know that how many clauses are in that sentence, we need to understand that how many times we use either a comma or conjunction. अगर एक कंजंक्शन लगा है तो दो क्लॉज हो जाएंगे, अगर दो कंजंक्शन लगे हैं तो तीन क्लॉज हो जाएंगे. एवरी टाइम अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दे मेक अ सेंटेंस और डिफरेंट क्लॉजेस. ठीक है, तो ये हो गया दूसरे वाला क्लॉज. तो यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं इसके अंदर. ठीक है, दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स. यहाँ पर वर्ब आर हो गई, दैट हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट समटाइम इन पास्ट. Ideas, these ideas and ideals have shaped our economic thought sometime in past. ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इस सेंटेंस में, क्योंकि वहां पर क्या होता है उनको ये दिखाई देता है यार देखो पास्ट लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट में टेंस चल रहा है, तो वो क्या करेंगे यहाँ हैव हटाकर हैड लगा देते हैं, है ना. हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में काम गलत होता है. तो सबसे पहले हमें समझना है ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप वहां पर जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह जगह आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर दोगे. अब उस कंडीशन में क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कहां पर इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज जो प्रेजेंट की जगह पास्ट में है, टाइम ऑलवेज रूल्स टेंस. टेंस मस्ट बी यूज्ड एज पर द टाइम. सो टाइम इज ऑफ पास्ट. ठीक है, इन दिस कंडीशन वी नीड टू सिंपली यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू जस्ट ड्रॉप दिस हैव, और ये शेप्ड बचेगा इट विल बी V2 और ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा. सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी these are the ideas and the ideals that shaped, had नहीं लगाना, that shaped our economic thought sometime in past. Okay, this is the correction. I hope इट इज क्लियर टू यू. चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए एक मिनट बचो. डन. नाउ वी शुड मूव. सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज गो थ्रू वंस. So in this sentence, it says, earlier we don't use technology as much as we do today. Earlier we don't use technology as much as we do today. पहले हम उतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते थे जितने कि हम अब करते हैं. तो देखिए जरा क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, और if there is any error, so where is the error? Error is in part A, part B or part C, and what should be the correction there? What should be the correction there? Everybody, take your time.
earlier we don't use technology as much as we do today. Do means use. Okay. अब पढ़ने में whenever we are reading this sentence is correct. मैं आपको बता दूं, पढ़ने से कभी भी ग्रामर का पता नहीं लगेगा. ग्रामर इज टेक्निकलिटी itself, just like you are doing maths with logics with reasoning. हाँ, जिस तरीके से आप अपना रीजनिंग करते हैं, मेंटल एबिलिटी करते हैं, वहाँ पर आप लॉजिक्स लगाते हैं, यहाँ पर भी वी नीड टू अप्लाई दोज इंपॉर्टेंट लॉजिक्स. सो अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, एक तो ये रहा है ना, और एक ये रहा. दीज आर द टू क्लॉजेज. इनमें से एक के साथ टाइम, दोनों के साथ एक तरीके से टाइम लगा है. यहाँ पर प्रेजेंट का टाइम लगा है, हाँ, यहाँ पर हमने प्रेजेंट टाइम लगाया, तो यहाँ पर पास्ट का भी तो लगा हुआ है. अर्लियर मतलब कब, अभी, नाउ, दीज डेज, हाँ, या फिर पास्ट में. तो हमने क्या किया कि दोनों के लिए हमने सिमिलर टेंस लगा दिए. यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया है, और वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट. दैट इज़ रॉन्ग. अगर टाइम पास्ट का है तो पास्ट आप टेंस लगाइए. ठीक है. तो ये यहाँ पर पास्ट का रेफरेंस है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है. दिस इज द करेक्शन. डिड नॉट और डिडंट, दिस इज द करेक्शन. दिख रहा है वहाँ पर, हाँ. ये जो डू नॉट लिखा है, इसकी जगह हमने लिखा है डिड नॉट. ठीक है. अब ये चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इट हैज बीन मूव टू पास्ट इंडेफिनिट. सो दिस इज द करेक्शन. ठीक है. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू लर्न. वी नीड टू, हाँ, हमें इन पर काम करना चाहिए, तभी जाकर हमारी ग्रामर स्ट्रांग हो सकती है. नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5. चलिए, जस्ट गो थ्रू वंस. क्वेश्चन नंबर 5. Read out the question, understand the question, give you 100%, have some logics. Where is the error? What is the error? What should be the correction? Or if there is no error, then the answer should be option D, no error. So here in this sentence, it says, many of my friends wish to come here today. Many of my friends wished to come here today, but none of them arrived yet. But none of them arrived yet. Very important question. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो क्लॉजेस का इस्तेमाल हुआ है. इन दिस सेंटेंस देर आर टू. whenever I ask, like whenever I start basic part and I ask that how many sentences are there, तो बच्चा कई बार मुझे बताता है कि यहाँ पर दो सेंटेंस. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पर एक ही फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो सेंटेंस एक है, लेकिन क्लॉजेस यहाँ पर एक से ज़्यादा है ना. तो देखो, ये रहा, ये कंजंक्शन है आपका, इसने दो क्लॉजेस को जोड़ दिया है, तो क्लॉजेस यहाँ पर दो हैं. टेंस की बात करें तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है. बोथ आर पास्ट इंडेफिनिट. दोनों क्लॉजेस में पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है ना. बट ध्यान देना, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस रन करता है. सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड उन्होंने पहले कभी किया था, है ना, टू कम हेयर टुडे, कि भाई उस दिन हम वहाँ पर जाएंगे. विश पहले किया था. सो प्रेजेंट की जगह पास्ट में उन्होंने डिज़ायर किया, विश किया. ठीक है. बट नन ऑफ देम अराइव्ड यट. अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक चीज़ पकड़ने वाली है, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. हाँ, देखिए एक बार. अब ये जो यट है ना, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. दिस इज द रेफरेंस ऑफ टाइम, है ना. अच्छा, नाउ यट सेज, यट मीन्स टिल नाउ. यट का मतलब क्या, टिल नाउ, है ना. अब आपका टाइम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन टेंस आपका कहाँ मूव कर गया, पास्ट में चल रहा है. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टाइम रूल्स टेंस. टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा टेंस चलता है. जहाँ का भी टाइम होगा वहीं का ही टेंस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा.
तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर दिया, दैट इज रॉन्ग। हमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम हैज अराइव्ड। नन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगाया। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, दिस इज द करेक्शन। सो दिस इज द करेक्शन। सो इस तरीके से अगर हम मन लगाकर बढ़िया से सीखें, अच्छे से चीज़ों को हम देखें, सो दीज आर समथिंग विच इज़ नॉट दैट मच हार्ड कि हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। बट व्हेन आर अप्रोच विल बी एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, देन ओनली वी कैन टैकल दीज क्वेश्चन। सो प्यारे बच्चों, आई होप, dear student, that you people have enjoyed this session. Thanks a lot.